Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 29, that was converting numbers to strings and strings to numbers that we saw in the last video. If you haven't watched that video, I would suggest to watch that video first and then continue watching this video. Okay, so let's begin with the first one. What is the keyword for converting an integer string or floating point number string to its equivalent number? वो कौन सा कीवर्ड है जो कि आप यूज़ करते हैं किसी भी इंटीजर स्ट्रिंग को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करते हो कहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करते हो तो वो हमारे पास नंबर कीवर्ड है और चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. Number 2, what is the keyword for converting a number to a string? So that is toString. Let me check first. 2.toString, 2.toString. Okay, with a capital S. So let's go with the capital S. Check your answer and it's incorrect. Next up, number 3. Type the characters that are missing from this statement. Why my string assign this. Okay, so my toString को call नहीं किया. Check your answer and it's incorrect. Number 4. num1 is string 1. num2 is string 3. Rewrite this statement so sum is assigned 4. var sum assign num1 plus num2. अच्छा, num1 के अंदर string में 1 है और num2 में number है string के अंदर 3. रीराइट दिस स्टेटमेंट सो सम इज असाइंड 4. इनको ये जो नीचे स्टेटमेंट है इसको रीराइट इसको दोबारा लिखें ताकि हमारे पास सम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए 4 आ जाए. ओके, सो ऑब्वियसली हमने इन दोनों को कन्वर्ट करना है किसके अंदर नंबर्स के अंदर. सो वार सम असाइन कर लेते हैं नंबर क्योंकि num1 को हमने पहले कन्वर्ट करना है नंबर में और फिर num2 को भी as it is हमने कन्वर्ट करना है नंबर में. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. Number 5, drag and drop है. Drag the pieces to form a statement that converts the sum of two numbers to a string and assigns the string to sum. अच्छा जी, convert करना है sum of two numbers to a string and assigns the string to sum. Okay, so we'll begin with var sum और sum में हमने assign करना है क्या sum of two numbers to a string. Okay, so क्या कर सकते हैं num1 प्लस num2, ये तो हो गया इन दोनों का सम, लेकिन इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इनको रैप करना पड़ेगा. और यहाँ से कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ से कर लेते हैं डॉट और डॉट के बाद कर लेते हैं टू स्ट्रिंग. डॉट टू स्ट्रिंग लगा लेंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ से ऑब्वियसली टू स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ेगा. तो ये लो जी, हमने किया टू स्ट्रिंग को कॉल और यहाँ से सेमीकोलन लगा के हमने एंड किया स्टेटमेंट को. चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट कोड. Okay, so we have done the same thing. So now we can say I got it right. Okay जी, तो हमारे पास next है auto complete. So convert the string represented by num as a string to a number and assign it to num which hasn't been declared beforehand. Okay, so var num assign, हमने क्या करना है string represented by this to a number, number में convert करना है num as a string और सेमीकोलन लगा देंगे एंड इट्स सेइंग वेल डन. अच्छा जी, मैं स्पीड से कर रहा हूँ या आपको चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली वॉच द लास्ट वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द कंसेप्ट्स आई एम यूजिंग ओवर हियर. ओके जी, फेल सेफ कोडिंग है. कन्वर्ट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नम टू अ स्ट्रिंग एंड असाइन द स्ट्रिंग टू नम स्ट्रिंग व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड. ओके, सो वर नम्स str के अंदर हमने डालना है कन्वर्ट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नम टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है और रिजल्ट डाल देना है num str के अंदर एंड सेइंग वेल डन.
Okay, number 8. Convert a string represented by my str to a number and assign it to num, which hasn't been declared beforehand. अब हमने उल्टा करना है, num के अंदर डाल देना है हमने नंबर में कन्वर्ट करके किसको, my str को. सही है जी. And check your answer and it's incorrect. So next up, number 9. Convert a number represented by num to a string and assign it to my str which hasn't been declared beforehand. एक नंबर है जिसको नम में रखा गया है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और माई एस टी आर में असाइन करना है. सो वार माई एस टी आर असाइन num dot to string. ओके, और सेमीकोलन लगा देते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. easy peasy. Convert a string represented by a variable to a number and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. एक स्ट्रिंग है जिसको एक वेरिएबल के अंदर रखा गया है, उसको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है और दूसरे वेरिएबल के अंदर उसको डाल देना है. सो ओके, हम कह सकते हैं कि var my str, बल्कि my num कह देते हैं, और क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे कन्वर्जन कर लेते हैं और my str उस स्ट्रिंग को बोल लेते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. Number 11. Convert a number represented by a variable to a string and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. अच्छा जी, सो अब लास्ट जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की उसके उल्टा करना है हमने. var my str में डाल देना है हमने लेट्स से my number को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके. हमने लास्ट में स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लिया था, अब नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, माई एस टी आर में डाल दिया. वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो आप, माई नंबर और माई एस टी आर हमने दे दिया. अब इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह आप कि पार्ट 29 तक आ गए, तो आप ये तो समझ सक रहे हो कि हम वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट. Number 12. Code the first line of an if statement that tests whether a string represented by a variable converted to a number is greater than 1. अच्छा जी, इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन लिखनी है जो कि ये टेस्ट करे कि एक स्ट्रिंग जो कि एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसको नंबर में कन्वर्ट किया गया, वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है. ओके, सो हम लिख लेते हैं इफ कन्वर्टेड टू नंबर है, तो नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ लेट्स से माई एस टी आर को. सही है जी, और ग्रेटर देन 1 के साथ उसको टेस्ट कर लेते हैं और पैरेंथेसिस यहाँ से क्लोज हो गई और कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लेते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स करेक्ट. नंबर 13, हम टाइम बाउंड हो गए हम. 30 seconds फॉर नंबर 13. कन्वर्ट अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय माई एस टी आर टू अ नंबर एंड असाइन इट टू नम विच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर है. स्ट्रिंग माई एस टी आर के अंदर है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है और नम में असाइन कर देना, और नम पहले से नहीं बनाया गया तो नम बनाना भी है. सो वार नम असाइन नंबर और माई एस टी आर. सही है. And we have 30 seconds for this one. Check your answer and it's saying well done. 10 seconds में कर लिया आपने, बेहतरीन हो गया. Okay जी, 30 seconds for number 14. Convert a number represented by num to a string and assign it to my str which hasn't been declared before. एक नंबर है जो कि नम में रखा गया है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, माई एस टी आर के अंदर डालना है, माई एस टी आर को बनाना भी है. So let's begin. var my str assign num dot to string ताकि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले. Check your answer and it's saying well done. 15. 30 seconds for this one. Convert a number represented by a variable to a string and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. एक नंबर है जिसको एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और एक वेरिएबल के अंदर उसको डाल देना है जो कि अभी तक बनाया गया नहीं है. ओके, सो हम लिख लेते हैं var my str assign my number dot s dot to string. नंबर को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में और दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल देना है. ओके, सो इट्स सेइंग वेल डन, करेक्ट हो गया हमारा.
40 seconds for number 16. Code the first line of an if statement that tests whether a string represented by variable converted to a number is greater than 1. Okay, so if number में convert किया गया एक टेस्ट स्ट्रिंग, कुछ भी बोल सकते हो, चेक करो कि वो बड़ा है greater than 1. Okay, 1 से बड़ा है. Check your answer and it's saying well done. 30 seconds for number 17. Convert a string represented by a variable to a number and assign it to a variable that hasn't been declared beforehand. स्ट्रिंग है, उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है और एक दूसरा वेरिएबल बना के उसके अंदर उसको डाल देना है स्ट्रिंग को. सही है, वेरिएबल ऑब्वियसली नहीं बनाया गया ऑलरेडी. सो वार माई नंबर असाइन, नंबर में कन्वर्ट करना है लेट्स से माई टेस्ट स्ट्रिंग को. ठीक है, वेरिएबल नेम्स कुछ भी हो सकते हैं. Check your answer and it's saying well done. 40 seconds for number 18. Num1 is 1, num2 is 3. Rewrite this statement so sum is assigned 4. इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है ताकि num1 num2 को प्लस करें तो हमारे पास सम क्या आ जाए, 4 आ जाए उसका आंसर. तो उसके लिए हमने इन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना होगा नंबर में 1 by 1. सो हम लिख सकते हैं var sum assign, नंबर में कन्वर्ट करो किसको, num1 को, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, फिर प्लस करो उनके साथ, नंबर में कन्वर्ट करके num2 को, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन. चेक योर आंसर, वेल डन. 18 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स मिले थे, 18 सेकेंड्स में आराम से हमने कर लिया. सही जी, ओके कर लो. एंड नाउ रिलैक्स. अब नंबर 19 है, 18 तक आपने सारे सही कर लिए हैं. 19 पे अब टाइम बाउंड नहीं है, आप आराम से करेंगे. असाइन अ स्ट्रिंग a number enclosed by quotation marks to a variable. Assign a string. String क्या है, a number enclosed by quotation marks to a variable. Okay, so var मैं लिख सकता हूँ कि my test string और उसके अंदर let's say 67 मैंने डाल दिया quotation marks के अंदर, सेमीकोलन लगा देता हूँ. फिर क्या कह रहे हैं, code an alert that displays the sum of the number converted to a number added to itself. अच्छा जी, अलर्ट के अंदर आपने क्या करना है, इस नंबर को खुद से सम करना है और उसको ऑब्वियसली पहले नंबर में कन्वर्ट करना है. सो मैं लिख लेता हूँ नंबर माई टेस्ट स्ट्रिंग, इतना बड़ा नाम ले लिया है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं. और यहाँ से लिख लेते हैं नंबर माई टेस्ट स्ट्रिंग और यहाँ से कर लेते हैं क्लोज, सेमीकोलन लगा देते हैं, रन कर लेते हैं. तो 67 120 और 14 134 हमारे पास आंसर आना चाहिए, and it's 134. So we can say I got it right. अच्छा जी, नंबर 20. Assign a number to a variable. Okay, so var my number या my num simplicity के लिए और let's say 10, सिंपल चीज रखने के लिए. Code an alert that displays the number converted to a string concatenated to itself. ऑब्वियसली इस नंबर को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर खुद से कॉन्कैटिनेट करना है और फिर क्या करना है, उसको अलर्ट करना है. सो अलर्ट कर लेते हैं हम, माई नम को डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए. और कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का साइन यूज़ होता है और माई नम फिर से लगाएंगे और डॉट टू स्ट्रिंग फिर से लगाएंगे और ऑब्वियसली कॉल भी करेंगे इसको. रन करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 1010, दैट इज 1010. सही आ रहा है. ओके, चेक अगेंस्ट करेक्ट कोड भी कर लेते हैं. सही है जी, 100 लिया है इन्होंने, हमने 10 लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप. एंड वी कैन से वी गॉट इट राइट. So congratulations, we got all the exercises correct for chapter number 29. And that's it from this video. मिलते हैं next video में. Till then, take care.